So, so today is the 8th session of our series Empowering Our Students. So, so if you see in this picture, so Yes. some of the students are present in today's session. Okay. And every year for last, I think 3-4 years, we have been conducting annual sports day on the last week of December. Okay. And this is a picture from 2018. And last year, we had Decathlon. If you have heard about Yes. Decathlon, Yes. Yes. so they sponsored for the top participants, top 5 participants, they sponsored. Okay. So in addition to that, we conduct a cultural day every year, where Okay. so all the students there, they have formed a group called Sankateshwar Youth Club. So Uh-huh. they have a cultural day, and they invite all the students, those have participated in the competitions, in the sports events, Mm-hmm. as well as the students who study well, do well in studies as well, music, dance. So they give awards for that as well. Uh-huh. Apart from that, there are various ponds in the village, so they take up cleaning activities. In 2016, we started something unique. So there are small patches of government land. So all the Mm-hmm. students got together, they started planting. Okay. And by 2019, you can see here, so we That's had 2 great. mini forests. Yes. Very nice. And because of that, one newspaper took out a article on that, how the students are doing the things Yes. together. So by early 2019, so we had 2 mini forests like this. Awesome. Then came Super Cyclone Fani in May 2019. Mm-hmm. So almost 80 to 90% plants that we had planted over the 3 years, Yeah. so those were destroyed. You can see the pictures. Yes. Yes. And I think everybody were sad because we had put in a lot of effort to do it. But we thought there's no point being sad for a long time. So what we did, I think what the students did, so because of the cyclone, all the electrical poles were broken and the wires also damaged. So the students kept on following with the electricity department to give them the poles and the wires. अच्छा मैं भूल गया, मैं हिंदी में बोलता हूँ ताकि और थोड़ा समझ में आए. तो ये हुआ कि ये लोग 1.5 महीने तक फॉलो अप करते गए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से. तो फाइनली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने इनको पोल और वायर्स दे दिए, और इन लोगों ने पोल लगा दिए और वायर्स भी लगा दिए उसमें. तो जब 15 दिन के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले आए, तो उन्होंने देखा कि 90% काम ऑलरेडी हो चुका है. तो उन्होंने जो थोड़ा बहुत फिक्स करना था वो कर दिया और करंट भी चार्ज कर दिया. तो बाकी जब नियर बाय विलेजेस में जब करंट नहीं थे, तो हमारे गांव में पहले करंट आ गया था. सो देन फिर क्या हुआ कि हमने सोचा कि ये जो साइक्लोन आ रहे हैं, हम उड़ीसा में बार बार आता रहता है, हर साल कुछ ना कुछ आता रहता है, नेचुरल कैलेमिटी, बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल पोजीशन. तो हमने क्या किया, लास्ट ईयर वी डिड ए साइक्लिंग ड्राइव टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज. सो ऑल द स्टूडेंट्स साइकिल पे बैठ के आसपास के जो 20-25 विलेजेस है वहां पे जाके उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन किया. फिर हम लोगों ने फिर से प्लांटेशन किया, अराउंड 500 प्लांट्स लगाए, और ये 2020 में अब इसका स्टेटस ये है. और आई थिंक जस्ट 15 दिन पहले ही ये फोटोज अपडेट नहीं किया है मैंने. 15 दिन पहले ही हमने और एक जगह पे 1050 प्लांट्स लगाए हैं. So that's what the students have been doing in last several years. Great. So that's how, since you work with companies for CSR activities, Yes. so that's why I told you that it is going to be a very interesting session for the students.
by listening to you. So that was in brief what students are doing. Now over to you. First I'll introduce you. तो स्टूडेंट्स हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं जो कि काफी CSR के रिलेटेड काम करते हैं. CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका मतलब जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो कुछ फंडिंग देते हैं जिससे कि हम सोसाइटी में कुछ काम हो सके, जैसे कि प्लांटेशन करना, एजुकेशन के रिलेटेड या पॉवर्टी एलिवेशन, बहुत सारे काम हो सकता है. तो उन्होंने बहुत सारे काम किया है और वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी देते हैं. और तो नेक्स्ट 1 घंटा मे बी 45 मिनट्स वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. सो ओवर टू यू. Thank you, Sandeep. I have given you the access. I think you can share your screen. I think you'll be able to share your screen. Can you try? I'll try. Okay. Is it visible? Yes. Clear, huh? Yes. Yes, I can see your screen. Okay, great. Hello everyone. उधर से तो अभी आवाज नहीं आएगी, बट बाद में हम लोग बात करेंगे. मेरी आवाज क्लियर है सबको? हाँ सर, क्लियर है. थैंक यू. चेहरा दिख रहा है ना ठीक से? दिख रहा है. हाँ, ठीक. थैंक यू. तो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है सक्सेस मेक इट योर हैबिट. तो उसके बारे में बात करेंगे, पर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं. जैसे करीब 13-14 साल से मैं कॉर्पोरेट्स में अलग अलग जगहों पे अलग अलग डोमेन्स में काम करता रहा हूँ. और CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ भी काफी मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है. तो आगे हम लोग पहले, अभी मैंने देखा आपका जो प्रेजेंटेशन था उसके अंदर बहुत सारे काम आपने किए हैं और ये बड़ा अप्रिशिएटिंग है. मतलब जिस तरीके से आपने काम किया है और जो इंटेंट दिखाया है, जो इंथुजियाज्म दिखाया है या जो इंटेंशंस हैं आपके, वो बड़े मतलब टचिंग है और काफी अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस बात को. तो कंपनीज जो हैं या बिजनेसेस वो भी इसी तरीके से कुछ काम करते हैं. तो क्योंकि आप वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक सिंक है. तो पहले हम लोग उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद लेटर ऑन हम फिर सक्सेस के ऊपर भी बात करेंगे. तो पूरे सेशन का ये एजेंडा रहेगा. तो अभी मैं दूसरी स्लाइड पे जा रहा हूँ. यहाँ पे थोड़ा बुकिश जैसा लिखा हुआ है, पर ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, बाकी बात हम लोग अभी यहाँ से करेंगे. तो ये स्लाइड आपको बता रही है, एक ब्रीफ है ये कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. तो अभी इसको ऐसे समझेंगे कि दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं उनका जो मेजर रीजन है एग्जिस्टेंस का, वो दुनिया में क्यों है, उसके कुछ बेसिक कारण हैं. एक तो अगर आप इसको समझें कि कोई भी बिजनेस क्यों होता है, तो अगर आप एक कंप्यूटर बना रहे हैं या आप सड़क बना रहे हैं या डैम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो किसी भी तरह के बिजनेस का अल्टीमेट जो एम होता है वो ये होता है कि लोगों की जिंदगी को पहले से थोड़ा और बेहतर कर दिया जाए. तो वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, या तो वो सर्विसेज में कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, बट कुछ ना कुछ लाइफ को बेटर करने के लिए उनको काम करना है और वो करते हैं. पर इन सब को रन करने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है बिजनेस के अंदर, वो है पैसा. तो बिजनेसेस को अपना पैसा बढ़ाना होता है, अपना रेवेन्यू बढ़ाना होता है, और उसके साथ साथ एक शब्द है प्रॉफिट. तो उनको प्रॉफिट कमाना होता है. तो बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए यू नीड सम मनी ऑल द टाइम, रनिंग एंड फ्लोइंग इन द सिस्टम. तो जब तक वो पैसा वहाँ रोटेट नहीं होगा, बिजनेस रन नहीं करेगा. क्योंकि जैसे लोग काम करते हैं, मशीनरी है, कुछ भी है,
उसके अंदर पैसे लगते हैं, फंड्स इन्वेस्ट होते हैं। तो बिजनेस को हमेशा पैसा चाहिए प्रॉफिट में, ताकि वो पैसा रोटेट हो और वो काम आगे बढ़े। तो बिजनेस एग्जिस्ट करता है लोगों की लाइफ के बेटरमेंट के लिए, प्लस इट हैज टू मेक मनी पैरेलली। उसको पैसे भी कमाने हैं, प्रॉफिट भी बनाना है, नहीं तो बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया में बिजनेस रन हो रहा है। अभी ये जितने भी कॉरपोरेट्स हैं या बिजनेस हाउसेज हैं, इन सबके साथ क्या है कि ये अभी इफ यू सी वन मोर पैटर्न, एक बिजनेस के अंदर क्या होता है कि दुनिया में थोड़ा कंज्यूमरिज्म ज्यादा है। जैसे हम जितनी चीजें कंज्यूम करते हैं, हमको खाना चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, हमको घर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बल्ब चाहिए, जो भी चाहिए, तो हम कंज्यूमर हैं, हमको वो कंज्यूम करना है। तो वो कंजम्पशन के लिए जो भी बिजनेस है वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाते हैं। तो उसके करने में वो हमारे आसपास या कुछ भी जो इन्वायरमेंट है या जो हमारे इकोसिस्टम है या हमारा प्लैनेट है या हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको भी कंज्यूम करते हैं। जैसे फैक्ट्री बनानी है तो वो लैंड कंज्यूम करेंगे, कई जगह पे फॉरेस्ट कट कर दिए जाते हैं। कई तरह के कंजम्पशन बिजनेसेस भी करते हैं अपनी तरफ से। तो पूरी दुनिया में लोगों ने ये सोचा कि जब बिजनेस या कॉरपोरेट हाउसेस इस तरीके से इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम में कंजम्पशन करते हैं, तो उनको उसके बदले कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं हुआ तो धीरे धीरे हम काफी मुश्किल में पड़ जाएंगे। जैसे आप देख भी रहे हैं कि डिप्रेशन हो रहा है, रिवर वाटर का प्रॉब्लम हो रहा है, ग्रीनरी का इश्यू है, ये सब काफी सीरियस कंसर्न है और उसी से रिलेटेड आप काम भी कर रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए पूरी दुनिया में ये बात हो रही थी कि बिजनेस हाउसेस को या कॉरपोरेट्स को कुछ ना कुछ इन रिटर्न करना चाहिए, ताकि एक बैलेंस बना रहे, नहीं तो ये पूरा का पूरा प्लैनेट कोलैप्स हो जाएगा। तो इसको देखते हुए एक सिस्टम लॉन्च किया गया जिसको कहा गया कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब CSR। तो ये क्या है? ये कॉरपोरेट्स की या बिजनेस हाउसेस की एक सोशल जिम्मेदारी है। मतलब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जिस तरह से वो यूज कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को या बाकी चीजों को, उस तरीके से वो उसको वापस भी करें। तो अभी स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल प्राइवेट बिजनेस सेल्फ रेगुलेशन। तो ये प्राइवेट बिजनेसेस के लिए एक रेगुलेशन है, एक नियम है, which aims to contribute to societal goals of activist or charitable nature by engaging in or supporting voluntarily or ethically oriented practices। तो वही है जो मैंने आपको बताई है, जो इथिकली ओरिएंटेड जो चीजें हैं या जो नेचर रिलेटेड चीजें हैं या इकोसिस्टम रिलेटेड चीजें हैं, उससे एंगेज करके उनको सपोर्ट करके, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी वॉलंटियर्स जो भी इस काम में लगे हुए हैं, उनको सपोर्ट करके कॉर्पोरेट हाउसेस को ये काम करना है। तो इंडिया जो है वो पहला ऐसा देश था दुनिया में, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक CSR मैंडेटरी। तो 2014 में इंडिया ने इसको मैंडेट कर दिया कि इंडिया के अंदर जितनी भी कॉर्पोरेट्स हैं, जो भी कंपनीज हैं, वो एक सर्टेन कंडीशन में अगर हैं तो उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर काम करना पड़ेगा और कुछ अपना उनका जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो इसके ऊपर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उसके मतलब रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनको पनिश किया जा सकता है, उनको फाइन किया जा सकता है, या उनको टैक्स देना पड़ेगा, या बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक मैंडेट है कि उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इन्वेस्ट करना है। और इसलिए इंडिया में काफी सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं। मेरी स्पीड ठीक है या मैं जल्दी बोल रहा हूँ? कहते मुझे ठीक लगता है, हम पूछ सकते हैं एक बार। अच्छा पिलावने स्पीड ठीक अच्छे ना और टिके स्लो कले हबो ना? ठीक अच्छे। हेलो ठीक जना पड़ुଛି। हेलो ज्योति ठीक अच्छी?
हाँ ठीक है जी। ओके 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 मैं ठीक अछि। ओके। अच्छा वरुण, Yes. आपने जैसे बताया कि अभी ये मैंडेटरी है, तो आपको पता है कि ओडिशा में कैसा इसका ये है कि कंपनीज को कौन से कंपनीज करते हैं, कुछ आइडिया है ये इसके बारे में? इसकी पूरी लिस्टिंग तो नहीं है अभी मेरे पास, बट वी कैन फाइंड इट आउट। ओके ओके जैसे कुछ एक मुझे मालूम है, बट मैं डिटेल्स निकाल के फिर वी कैन डिस्कस इट, ओके ओके। क्योंकि वो कर रहे हैं ऑलरेडी, दे हैव टू डू इट मींस देयर प्रोविंस। जैसे आपके यहाँ जो जितने भी आईटी हाउसेस हैं, उनको तो वहाँ करना है, वहाँ पे स्किलिंग में भी। इन्फोसिस है, टीसीएस है, कुछ कंपनीज है, हाँ, आई थिंक तो माइंट्री भी है। करेक्ट। तो उनको क्या है, स्किलिंग में भी करना है, इन्वायरमेंट में भी करना है, बाकी हेल्थ में भी करना है, ये इस सब के ऊपर उनको करना है। तो ये थोड़ा सा डिग करना पड़ेगा कि इन व्हाट स्पेसेस दे आर डूइंग इट। वो निकल के आ जाएगा, दैट्स नॉट अ चैलेंज, वी कैन फेच इट। ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये स्लाइड जो अभी आपको दिख रही है, इसमें भी थोड़ी सी और डिटेलिंग करते हैं। जैसे ये पहला जो दिख रहा है, कॉर्पोरेट की बिजनेस एग्जिस्ट प्राइमरली टू मेक प्रॉफिट। तो वो पैसे कमाते हैं, इसलिए उनको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। पैसे वो कमा रहे हैं कंज्यूम करके रिसोर्सेज को, तो उनको उसके ऊपर बैलेंस करने के लिए भी फंड लगाना पड़ेगा। ये नियम बनाया गया गवर्नमेंट से। तो दूसरा पार्ट जहां आप देख रहे हैं रेवेन्यू या मनी लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कौन वो बिजनेस हाउसेज होंगे या कौन वो कॉर्पोरेट्स होंगे जो सीएसआर में इन्वेस्ट करेंगे या सीएसआर के काम में पैसा लगाएंगे। तो उसमें 3 कंडीशंस हैं मेजरली। एक, अगर उस कंपनी का नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, मतलब उसकी टोटल जो वैल्यूएशन है, कंपनी की जो टोटल वैल्यू है, वो अगर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसको सीएसआर में पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन है कि उसका टर्नओवर या रेवेन्यू, मतलब साल भर में वो जितने पैसे उसके अकाउंट में आते हैं, वो अगर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो भी उसको सीएसआर में फंड करना पड़ेगा। या थर्ड कंडीशन है कि उसका नेट प्रॉफिट, मतलब सारा खर्चा और सारी इनकम, उसका हिसाब लगाने के बाद जो पैसा बच गया है, जो उनका प्रॉफिट है, वो अगर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो भी उनको सीएसआर में पैसा लगाना पड़ेगा। तो इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज इन 3 कंडीशंस के अंडर में आएंगी, उनको सीएसआर के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया। तीसरा जो सेक्शन आपको दिख रहा है इसके ऊपर, वो है अंडर द कंपनीज एक्ट, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years ऑन सीएसआर। तो ये कंडीशन आपको ये बता रही है कि कोई भी कंपनी जो सेकेंड सेक्शन को अगर आप देखें कि उसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो, या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो, या उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा होता हो, तो उसको सीएसआर करना पड़ेगा। अब वो कितना पैसा सीएसआर के अंदर लगा सकता है, उसका हिसाब थर्ड सेक्शन में है कि उसको खर्चा करना पड़ेगा 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years। तो पीछे के 3 साल का उसका जो नेट प्रॉफिट है, उसका 2% उसको मिनिमम सीएसआर पे खर्च करना पड़ेगा। वो चाहे तो ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन 2% उसको उसके ऊपर खर्च करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसको ठीक से समझेंगे, ये जो सीएसआर के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, ये छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि कंपनीज का जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, वो इट इज मैसिव। वो 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ भी हो सकता है। तो अगर आप 1000 करोड़ पर ईयर भी उसका प्रॉफिट लेके चले, या 500 करोड़ भी लेके चले, तो 3 साल में 1500 करोड़ रुपए का उसने अगर नेट प्रॉफिट कर लिया है, तो 1500 करोड़ का 2% उसको सीएसआर में देना पड़ेगा। अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक कंपनी को कितना पैसा खर्चा करना है सीएसआर के ऊपर। और चौथा सेक्शन जो आपको दिख रहा है, कि इसमें क्या होता है कि कंपनीज, एक और उसमें रूल है कि कंपनी या जो प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डायरेक्टली सीएसआर के ऊपर काम नहीं कर सकते,
क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो जहाँ भी प्रॉफिट है वहाँ CSR के ऊपर वो काम नहीं कर सकते। तो उनको हमेशा किसी भी फाउंडेशन या NGO या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये काम करना होता है। तो कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपने फाउंडेशंस बना ली। जैसे अगर आप बात करेंगे टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा ने अपना एक फाउंडेशन बनाया, टेक महिंद्रा फाउंडेशन। तो उसने अपना ही एक NGO बना लिया और उस NGO के थ्रू वो अपने CSR के काम करता है। पर वो सारे काम टेक महिंद्रा फाउंडेशन करता नहीं है, वो सिर्फ उसको मॉनिटर करता है। जो असल ऑन ग्राउंड काम है वो जो लोकल NGOs हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जैसे आप काम कर रहे हैं, तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं और सिस्टम्स हैं, एक्चुअल काम वही करते हैं। तो जैसे टेक महिंद्रा फाउंडेशन है, उसके पास पैसा आता है टेक महिंद्रा से। टेक महिंद्रा ने फाउंडेशन को पैसा दे दिया कि इतना खर्चा आपको CSR के ऊपर इस साल में करना है। तो अब फाउंडेशन ये डिसाइड करता है कि हमने कौन कौन सा काम करना है, किस किस एरिया में करना है, और उस एरिया में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो NGOs हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं, उनको वो फिर फंड्स प्रोवाइड करते हैं और वहां पे वो काम होता है। तो इससे वो काम काफी तेजी से होता है। और जो रिसोर्सेज का एक क्रंच हमको रहता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन है या NGO है, लेकिन हमको फंड चाहिए होगा, हमको काम आगे कैसे बढ़ाना है, या इतने हमको 1 लाख प्लांटेशन करने हैं तो उसके ऊपर एक्सपेंसेस हैं। तो वो कंपनीज लाइक टेक महिंद्रा और इन्फोसिस और somebody कैन एक्चुअली गेट इनटू इट। वो आ सकते हैं और उसके ऊपर वो काम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इससे काफी तेजी से वो काम बढ़ सकता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे कि CSR के अंदर काम होता है, और ये बहुत बड़ा काम है। इसको अगर स्केल करना चाहें या इस पे बहुत सारा, अगर हमारे अंदर उतना एंथुसियाज्म हो और इंटेंट हो, तो इसको हम काफी बड़ा कर सकते हैं। और ये होता क्या है कि अगर हमको अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है तो आसपास की चीजें बेहतर बनानी। अगर आसपास सब ठीक नहीं होगा तो हम ठीक नहीं रह सकते। पर इस बात को ज्यादातर लोग आजकल समझते नहीं। वो अपने ऊपर ज्यादा मेहनत करते हैं और आसपास बिगाड़ देते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप आसपास देख रहे हैं। तो आप आसपास देख रहे हैं तो एक उम्मीद बनती है कि ठीक है, कुछ काम हो जाएगा। तो जो काम इस तरह के हो रहे हैं उसको आप ये ना समझें कि ये बड़ा लिमिटेड है। ये बहुत बड़ा फील्ड है और इसके अंदर बहुत कुछ हो रहा है, और इसमें आगे काफी प्रोस्पेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं और इसको बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी एक यस we can continue Samit. ପିଲାମାନେ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? नो, आई थिंक क्वेश्चन नहीं है। मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं जहाँ पे बैंगलोर में रहता हूँ, यहाँ पे एक हमारा ग्रुप है, कुछ वॉलंटियर्स का ग्रुप है। तो लास्ट मंथ हमने मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे कर्नाटका रिजर्व पुलिस फोर्स का एक बहुत बड़ा कैंपस है। तो हमने एक NGO के साथ काम करते हैं, काफी एक साल से काम करते हैं। तो NGO और ये कर्नाटका पुलिस, इनके साथ मिलके हमने लास्ट मंथ 15,000 प्लांटेशन करवाए यहाँ पे। और ये NGO काफी अच्छा काम करता है। से ट्रीज के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो ये काफी अच्छा काम करते हैं। और रिसेंटली हमारा 1-1.5 साल से काम चल रहा है। तो अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे एक लेक है, बहुत बड़ा सा लेक है सरजापुर रोड पे। तो इसके लिए भी ऑलमोस्ट फंडिंग फाइनल हो गया है। अच्छा। तो लेक का काम भी शुरू होने वाला है। बढ़िया। तो बाकी तो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ कि CSR में क्या है, बट आपने अभी जो आइडिया दिया कि इतने सारे इतने सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट भी अपने तरफ से ट्राई कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है, जो जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कम्प्लीटली वॉलेंटरी काम करते हैं, ना उनको कुछ पैसा मिलता है, ना उनको कुछ और कुछ बेनिफिट्स मिलता है। वो प्योरली वॉलेंटरीली सेल्फलेसली वो काम करते हैं। तो जो भी फंडिंग चाहिए होता है वो अपने खुद कुछ फ्रेंड से ऐसे जान पहचान करके
फंडिंग करके कर रहे हैं 3-4 साल से। तो आपको लगता है कि कौन से टाइप के मतलब सीएसआर के थ्रू फंड मिल सकता है ऐसे? हाँ, मिल सकता है, क्योंकि जैसे इन्वायरमेंटल साइड में जो भी सीएसआर का फंड इन्वॉल्व है, तो इसमें करना ये होगा कि जो भी काम हो रहा है उसको किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के बैनर के अंदर लाना पड़ेगा। अच्छा, ओके। जैसे अनऑर्गेनाइज में उनको भी समझ नहीं आएगा कि फंड किसको करना है। तो अगर ये कोई एनजीओ हो जाए या उस तरह का कुछ भी रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो फिर उसके ऊपर मेहनत की जा सकती है कि कैसे वहां तक फंड्स को पहुंचाया जाए, या कैसे हम कॉर्पोरेट्स को रीच आउट करें कि ये हमने किया है, ये हमारा काम है, इसको आगे बढ़ाना। तो अच्छा, वो आसान हो जाता है। अच्छा, कॉर्पोरेट तभी फंडिंग करेंगे जब भी आपका एनजीओ पूरा फुल्ली रजिस्टर्ड हो और सब कुछ हो। ओके, ओके। हाँ, वो उनके कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे आपने 3 साल कम से कम काम कर रखा हो, 4 साल ये काम किया है, आपका एनजीओ है, तो उस तरह का या तो कोई एनजीओ वहाँ लोकल में ढूंढ के उसके बैनर के अंडर हम उस काम को कोशिश कर सकते हैं, या हमारा अपना कोई अगर सिस्टम हो तो उसके अंदर उस काम को कर सकते हैं। क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके लिए फंड को रूट करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि उनकी ऑडिटिंग जो है ना, उसके ऊपर फिर वो 10 क्वेश्चन आते हैं। जो मतलब क्लब ये के बारे में बताया असल वो में तो तो आपको रजिस्टर्ड है। ऑन ग्राउंड काम करना है। जो क्लब के बारे में बताया, जो स्टूडेंट्स है, जी, तो वो तो रजिस्टर्ड है, बट आई डोंट थिंक इट इज एन एनजीओ। मतलब ये सब तो थोड़ा लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिनको देखा जा सकता है कि वो क्या है क्या नहीं, और वो किस लेवल तक जाके क्या कर सकते हैं। बट बेसिकली जो मैंने अभी तक किया है उससे बता रहा हूँ कि वो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे कोई फाउंडेशन है, कुछ कोई, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारा काम किया था जिसमें जो ग्रेजुएट बच्चे हैं जिनकी जॉब नहीं हो पा रही है या वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको ढूंढ के लाना, उनको 3 महीने की ट्रेनिंग देना और फिर उनकी जॉब्स करवाना। और जॉब्स मतलब ऐसी कि इन्फोसिस टीसीएस में सबकी जॉब ऑलमोस्ट हमने करवा दी। तो ये उनको ढूंढना, तो वो कह रहे थे कि आप, जैसे वो जब हमको काम चाहिए था तो मैंने कहा कि आपका एनजीओ होना या होना जरूरी है, क्योंकि हम फिर फंड नहीं कर सकते। तो इस तरह के काम में वही एक लीगल ग्लिच है बस, उसमें एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पे उनके 10 नियम कानून होते हैं, है ना, इसलिए। ओके। तो अभी हम आ जाते हैं इस स्लाइड के ऊपर। ये थोड़ा सा एक और ब्रॉड ओवरव्यू है। अभी क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किया। तो उसने ये तय किया कि भाई पूरी दुनिया के अंदर इन चीजों के ऊपर मेजॉरिटी में काम करना पड़ेगा। तो स्लाइड पे अगर आप देखेंगे, जो 17 गोल्स यूनाइटेड नेशंस ने जो डिसाइड किए, उसमें वो कहते हैं नो पॉवर्टी। तो ये एक जो सेक्शन है, ये इसके अंदर जो काम होने हैं ना, वो मतलब काफी ब्रॉड है, बहुत सारे काम इसके अंदर हैं। तो वो सारे तो लिस्ट मैंने नहीं किए, बट ओवरऑल एक आइडिया देने के लिए मैंने इसको रखा है कि अब नो पॉवर्टी में अब गरीबी मिटाने के लिए कितने तरह के काम किए जा सकते हैं, वो सब इस सेक्शन में आते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि जीरो हंगर, मतलब हमको भूख खत्म करनी है, दुनिया से कोई भूखा न सोए। अब ये काफी बड़े काम है। तीसरा, वो कह रहे हैं गुड हेल्थ। चौथा है एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। फिर कहते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। उसके बाद कहते हैं अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, जहाँ आपने काफी काम किया है, लाइफ बिलो वाटर, मतलब पानी के अंदर जो कुछ हो रहा है, लाइफ ऑन लैंड, इज जस्ट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। देखेंगे ओवरऑल एक लाइफ को बेटर करने के लिए अंदर बाहर जितनी चीजें हो सकती हैं, यूनाइटेड नेशंस ने उनको लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद क्या, इस स्लाइड का मतलब ये है कि ये जो एसडीजी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अभी जितना भी सीएसआर होता है,
जो भी कंपनी को करना है फाइनली उसको इसी के ब्रैकेट में आके इसी के अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और वो इसको शोकेस करते हैं कि हमने इस सेक्शन में यहाँ यहाँ इतना इतना काम किया। तो ये बातें इंडियन गवर्नमेंट से होते हुए यूनाइटेड नेशंस तक भी जाती है, क्योंकि हमारे देश में जो कंपनी काम करती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करती है कि भाई हमने क्लाइमेट एक्शन के ऊपर हमने इस साल में उड़ीसा में हमने 20 लाख पेड़ लगवा दिए। तो इसको वो रिपोर्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको उठाती है और कहती है कि हमने भाई इतना काम करा दिया। इतना काम करा के गवर्नमेंट इसको दिखाती है यूनाइटेड नेशंस को। तो पूरी दुनिया में ये पता चलता है कि भारत ने भाई इन सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर इस तरह का काम किया, इतना इतना काम किया। सो इंडिया इज रियली डूइंग गुड इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इस तरीके से वो पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे की मदद करता है, जैसे यूएन से लेके और ऑन ग्राउंड जो काम कर रहा है वहां तक, ये सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और फिर उसका अप्रिसिएशन है, यूएन से लोग भी आते हैं देखने के लिए, वो अप्रिशिएट करते हैं। अगर वो काम उनको लगता है कि इसको और बढ़ाया जा सकता है तो फिर वो यूनाइटेड नेशन से डायरेक्टली भी उसको हैंडल करते हैं कि इसको आप ऐसे करें ऐसे करें, फिर उसकी फंडिंग भी अलग से होती है। तो ये बहुत बहुत बड़ा काम है। मैं बार बार यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो छोटा काम नहीं है, उसको बहुत बड़ा कर सकते हैं। और बस उसका इंटेंट जो है वो सही रखना होता है, और कई रास्ते हैं जिनसे हम उस काम को कर सकते हैं। और अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये काम करते करते मतलब जिंदगी निकल जाए, ये इतना सारा काम है। और हमारे देश में तो मतलब हर मोड़ पे इस तरह के 100 काम है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो CSR है, जिस तरीके से इंडिया में कंपनीज उसको टेकअप कर रही हैं, जिस तरीके से लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो सब जुड़ रहे हैं, और ये सिर्फ लोकल बेसिस पे नहीं है, ये आप जो गांव के अंदर या कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हैं वो काम वहां से और यूनाइटेड नेशंस तक जुड़ा हुआ है। तो अगर उसको सही तरीके से आप चैनलाइज करें, सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें, उसका प्रोसेस रखें और सारी चीजें ठीक रहें, तो ये काम काफी तेजी से और काफी ज्यादा किया जा सकता है। तो और वरुण, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बताइए। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताया, पीपीटी में दिखाया कि स्टूडेंट्स लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, और 4-5 साल से कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि अभी कर रहे हैं, शुरू किया है, 4-5 साल से कर रहे हैं। मोर फोकस इज टुवर्ड्स प्लांटेशन, उसके अलावा भी ब्लड डोनेशन करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे वेरियस एक्टिविटीज करते हैं। बट उसको और लोगों तक पहुंचाने के लिए या इसको और बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि हम 1000 पेड़ लगा पा रहे हैं, बट हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि, क्योंकि प्लेस है बट हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, वरना हम और भी लगा सकते हैं। तो हम और क्या कर सकते हैं? आपके क्या कुछ आइडिया आप बता सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और इसको और बेहतर बनाने के लिए? इमीडिएटली तो जैसे मेरी समझ में आता है कि इस एरिया के अंदर, जैसे आप कह रहे हैं जो काम अभी हो रहे हैं, जैसे लैंड लाइफ ऑन लैंड, ये जो 15वां सेक्शन है SDG का, या क्लाइमेट एक्शन, या आप कह रहे हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग जिसके अंदर ब्लड डोनेशन है, ये सारी चीजें, तो कम से कम 3 सेक्शंस दिखते हैं जिसके ऊपर काम हो रहे हैं। तो इन सब को लेके जो 4 साल 5 साल का जो पूरा काम है उसको शोकेस करके काफी इमीडिएट काम जो किया जा सकता है वो ये है कि उस एरिया का जो सबसे प्रोमिनेंट उस फील्ड में काम करने वाला NGO है उसको टच कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो वॉलंटियर्स की है। लोग असल में ऑन ग्राउंड काम करना नहीं चाह रहे। तो इफ पीपल आर देयर जो काम कर रहे हैं, उनको तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काम करना आसान काम नहीं होता। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो जो लोग सही में काम कर रहे हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको बस सही ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचना है। तो या तो NGO तक पहुंच के उनके थ्रू काम शुरू कर सकते हैं, आपको रूल कर सकते हैं, क्योंकि उनको फंड इन्वेस्ट तो करने हैं, कहीं एक्सपेंड तो करने हैं। या फिर जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनसे जाके मिलके बात कर सकते हैं कि भाई आप हमने क्लाइमेट एक्शन के ऊपर ये काम किया है, आपके यहाँ जो CSR में फंडिंग जाती है उसमें क्लाइमेट एक्शन के ऊपर आप क्या काम कर रहे हो, तो अगर हमारा सिंक है तो फिर हम एक साथ काम कर सकते हैं।
तो ये 2 इमीडिएट एक्शन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि जो लोकल उस एरिया में जो फंक्शनल बड़े एनजीओज हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, इतने साल से कर रहे हैं, ये इसका इम्पैक्ट है और इसको हम स्केल नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, सो हाउ यू कैन हेल्प अस टू डू इट. So the only way they'll help us is by giving funds or some more hands to do it. So that will expedite. I think that's the immediate way to look at it. Okay. जैसे कि प्लांटेशन हमारा होता है, प्लांटेशन यूजुअली जुलाई अगस्त में होता है, बट उसके बाद देन बाकी हर 15 दिन में उसको टेक केयर करना पड़ता है. बट जैसे कि इतने सारे आपने गोल्स बताया, 17 गोल्स हैं, उसके अंदर भी मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं. करेक्ट. मतलब थ्रू आउट द ईयर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं. कुछ ना कुछ कर सकते हैं. कुछ ना अभी जैसे ईशा फाउंडेशन है, ईशा फाउंडेशन ने जो रैली फॉर रिवर्स किया था, तो उसमें वो कह रहे हैं कि डिप्लीशन हो रहा है, तो प्लांटेशन की बात कर. अब ईशा फाउंडेशन ने तमिलनाडु में लाखों पेड़ लगा दिए. Why? Because the foundation itself has a lot of funding. तो अगर हमको भी जैसे हम उनके साथ जुड़ जाए कि ठीक है हम भी पेड़ लगा रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इमीडिएट फंड्स रूट हो जाएंगे. क्योंकि वो प्लांटेशन पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं. आर्ट ऑफ लिविंग भी काम करता है इसके ऊपर. इस तरह के जो मैसिव इंडिया में सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो योगिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी काम कर रहे हैं. ओके. और उनके पास इनॉर्मस फंड्स हैं. मतलब वो तो ऑलरेडी, क्योंकि काफी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो गए और काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो काफी फंडिंग है और कई तरह की चीजें हैं, तो उनका काम जो है उस तरीके से वहाँ पे हो रहा है. So it's just like meeting the right people on the right platform and let it go. और ये आपका पॉइंट काफी वैलिड है कि सिर्फ ये अगर जैसे 3 महीने 2 महीने अगर कुछ काम हो पाता है, तो ऐसा नहीं है. हमारे पास इतने सारे वैरायटी ऑफ काम है उसके अंदर कि हम उसको पिक करके और कुछ भी कर सकते हैं. ये चौथी स्लाइड जो है, ये तो मतलब इसको बोलने की जरूरत नहीं है, इस पे बात हमने कर ही ली है. तो ये कह रहे हैं, महात्मा गांधी ने कहा कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. ये अपने आसपास जो भी बदलाव आप देखना चाहते हैं, पहले वो अपने आप में ले आए. तो वो तो आप ले आए, वो आप कर रहे हैं. तो अगर आप कर रहे हैं तो आसपास की चीजें भी बदलेंगी, सुधरेंगी और बेहतर हो जाएंगी. अभी दूसरा जो दिख रहा है वो स्वामी विवेकानंद है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड. तो ये तो मैं अपने लाइफ में पर्सनली इसको काफी क्लोज रखता हूँ इस स्टेटमेंट को, और ये मेरे लिए तो बिल्कुल काम करता है. क्योंकि कई बार होता है क्या है ना कि एक शब्द होता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं फीलिंग. फीलिंग जो है बड़ी खतरनाक चीज होती है, ये आदमी को डेविएट करा देती है. अच्छा लगा तो कर रहे, नहीं अच्छा लगा तो यार कौन करेगा. हाँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग हंग्री. ये इतना गलत स्टेटमेंट इसलिए है कि या तो आप भूखे होंगे या नहीं होंगे. भूख को महसूस करने का कोई पॉइंट नहीं होता है. तो ये विवेकानंद का स्टेटमेंट काफी इंस्पायरिंग होता है कि आप उठें, अपना गोल डिसाइड करें और तब तक उस पर काम करते रहें जब तक वो हो न जाए. बीच में कोई नहीं. अगर ये एटीट्यूड बना रहे तो कोई भी काम आसान हो जाता है. और वो जो पूरा CSR का काम है, उसके अंदर ऑब्स्टेकल्स होते हैं. क्योंकि ये कोई एसी रूम में बैठ के कोई लग्जरियस डिबेट करने का काम नहीं है. ये ऑन ग्राउंड कई चीजों को बदलने का काम है. अपने आसपास काफी स्ट्रगल है, वो लोकल चैलेंजेस होते हैं, क्लाइमेट चैलेंजेस होते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं.
तो उसमें थोड़ा सा कई बार आदमी थकता है, थोड़ा झुकता है, थोड़ा कई बार काम होता है, नहीं होता है, थोड़ा डिमोरलाइज हो जाता है, ये हो जाता है। उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपका मोटिव क्लियर है और आपने अपना गोल बना रखा है कि ये करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि रीजन को स्टैब्लिश करना, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। उसका कारण अगर आपके पास स्टैब्लिश है तो उस काम को होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिनको कारण नहीं है कोई काम करने का, वो बीच में छोड़ के जाएंगे। वो कुछ भी शुरू करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। पर जिनके पास कारण है कुछ करने का, वो छोड़ते नहीं। तो इस तरह के से अगर उस काम को किया जाए, एक गोल बनाया जाए, एक कारण रखा जाए, खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 तरह की चीजें होती हैं जो आपको पीछे खींचती हैं, वहां तक जाने की जरूरत है। तो आप अपने काम में लगे रहेंगे, काम हो जाएगा। तो ये CSR के ऊपर तो हाँ, आपने जो एग्जाम्पल दिया, हम्म, तो वो उससे मुझे याद आता है कि हमने जो ये शुरू किया है, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, हम्म, तो हमारा एक ड्रीम है कि हम हम्म, अपना विलेज को एक आइडियल विलेज बनाएं और एक बेस्ट विलेज बनाएं अपने स्टेट में। हम्म। तो वही हम कोशिश करें। अभी कितना टाइम लगेगा उसको हमें नहीं पता, बट वो हमारा नहीं, रीजन है कि हम अपने हाँ, गांव को हाँ। कोशिश करते रहेंगे बेस्ट विलेज बनाने के लिए। तो ये एक प्रोमिनेंट कारण है, इसलिए काम हो रहा है। डेफिनेटली, डेफिनेटली, यस। काम हो रहा है, ये तो नियम है, मतलब इट इज अ रूल। आपके पास रीजन नहीं है ना, तो बीच में डेविएशन हो गया। जितने भी लोग हैं वो कंप्लीटली वॉलेंटरली सेल्फलेस, मतलब जैसे पेड़ लगा दिया, एक बार लग गया, बट हर 15 दिन में उसको जाके पानी देना है, हम्म, उसको खाद थोड़ा देना है, कुछ इंसेक्टिसाइड डालना है, तो बहुत करेक्ट। मेहनत लगता है थ्रू आउट द सही ईयर। बात, सही बात। तो ये तो वही पैशन से ही आ सकता है कि आपके पास नहीं एक तो स्ट्रांग रीजन हो। हाँ, नहीं तो ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। सही बात है। अगर कोई चाहेगा कि नहीं ऐसे, मतलब एंजॉय करते हुए कुछ कर रहे हैं, ऐसे कर लेंगे साइड में, वो काम वैसा नहीं है। सही बात है, सही बात है। यू नीड टू फील इट, अदरवाइज यू कैंट डू इट। और भी हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इसी हफ्ते ही शुरू किया है, जिसका मैंने पहले नहीं बताया। अभी यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं, ये सब थोड़ा इनका एज ग्रुप ज्यादा है, अराउंड 15 एंड अबव। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो उसके नीचे भी हैं। हाँ, हाँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो दिल्ली का है, अच्छा, वो भी बैंगलोर में ही रहता है। तो हम दोनों एक आपस में काम करते थे कंपनी में। अच्छा। तो ही इज वेरी गुड एट प्रोग्रामिंग। ओके। तो उसने लास्ट वीक मेरे को बताया कि गूगल और MIT दोनों ने मिलकर एक स्क्रैच करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया है, हम्म। जिससे कि आप कार्टून कैरेक्टर से आप बच्चों को सिखा सकते हो कोडिंग। अच्छा। तो उसने एक सेशन लिया था, 57 स्टूडेंट्स आए थे, हमने ऑनलाइन क्लासेस किए थे। हाँ, हाँ। तो ये हमारा प्लान है कि नेक्स्ट 3-4 मंथ्स तक किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स में जो क्यूरियोसिटी है कंप्यूटर के बारे में सीखने का, हम्म। वो एक बार जनरेट हो, तो देन दे विल फॉल इन लव विथ लर्निंग। करेक्ट। तो वो भी हमने एक शुरू किया है पैरेलली। दैट इज एनीवे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरीके से हम आज हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया और बंगाली बोल रहे हैं, उसी तरीके से आज से 4 से 5 साल के बाद कोडिंग की भाषा यूज की जाएगी, तो वो बेसिक लिटरेसी हो जाएगी। कंप्यूटर तो आजकल सब कुछ, कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं है अभी तो। तो अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, तो भविष्य जो है वो बहुत थ्रेटनिंग हो जाएगा, हम्म, किसी के लिए भी हो जाएगा। हम्म, मैंने तो मैकेनिकल में पढ़ाई की, कभी भी कंप्यूटर साइड में रहा नहीं, हम्म, और हमेशा बिजनेस साइड पे काम किया। लेकिन 2 साल पहले मेरे को लगा कि अगर मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आई तो शायद मैं कहीं जाके ऑब्सोलीट हो जाऊंगा। हम्म, हम्म, तो फिर मैंने स्क्रैच से शुरू किया, वो यूडेमी से 400 रुपए का कोर्स किया, फिर उसको समझने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे अभी थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो लगता है कि मैं थोड़ा लिटरेट हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल ही इलिटरेट फील कर रहा था अपने आप। हम्म, कहीं भी जा रहा था, वो एक अजीब सी भाषा में बात करते थे, मेरी समझ में नहीं आता था। हम्म, तो ये तो धीरे धीरे अब जिस हिसाब से दुनिया बदलती है, उस हिसाब से हमको बदल जाना पड़ता है थोड़ा सा। नहीं तो आपको, आपका कंटेम्प्ररी होना बहुत जरूरी है, रिलेवेंट होना बहुत जरूरी है। हम्म। लोग जिस भाषा में, आपको लोग तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप
तो उनकी जानना थोड़ा जरूरी है। हम्म। तो CSR के ऊपर तो यही बातें थी। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है अगर किसी के पास, तो हम बात करते हैं। ପିଲାମାନେ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? ଅଜିତ ବାବୁ हेलो नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं है। थ्योरी तो समझ नहीं। और जैसे हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इसीलिए CSR के बारे में पता था, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हुआ। नहीं ठीक है, अभी अभी क्वेश्चन नहीं भी है तो प्रेजेंटेशन तो है ही सर। आप बाद में भी आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो आप समृद्ध सर तक पहुंचा दें, तो फिर हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, तुरंत तुरंत सवाल आते नहीं। जैसे मैं तो स्टूडेंट के साथ पिछले 6 साल से कम 1 लाख स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर चुका हूँ। तो मेरे को पता है कि क्वेश्चन आने में टाइम लगता है। इंडिया में क्या हुआ है, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आप लोगों को। इंडिया में क्या हुआ है, हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ये एक कहानी है, इसको आप सुनिए। इसमें हुआ क्या था कि अंग्रेजों को भारत को अक्वायर करना था। तो जब ब्रिटिश को यहाँ आना था, तो वहाँ जो महारानी थी, उन्होंने कहा कि भाई ये पता करो, इस वो तो काफी रिसर्च करके आते हैं, वो ऐसे आते नहीं। महारानी ने कह दिया कि पता करो इस देश को कैसे हम गुलाम बनाएंगे। तो एक साहब थे, उनको अपॉइंट किया गया कि आप इंडिया चले जाएं और वहां जाके पता करें कि ये कैसे होगा। तो आए, उन्होंने पूरा भारत घूमा। घूमने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट लेके वो चले गए ब्रिटेन, और वहां जाके लंदन में रिपोर्ट सबमिट किया। सबमिट करने पे उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि इस देश को आप गुलाम नहीं बना सकते। तो महारानी जो थी, उन्होंने कहा कि तो इसके लिए तुमको भेजा था वहां कि ये आके बताओ कि ये नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, इसका सोल्यूशन है। बोला कि पहले कारण बताओ और फिर इसका निवारण बताओ, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देश को आप गुलाम इसलिए नहीं कर सकते कि वहां कोई गरीब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो यार, वहां तो पता चलता है यहाँ बाहर से कि सब अजीब भूखे नंगे टाइप के लोग हैं, ज्यादातर उनको खाने को नहीं है, ये नहीं है। तुम कहते हो गरीब नहीं। बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ मेजोरिटी वाले लोग, उनको पैसा भी है, रिसोर्सेज भी है, और जिनको आप गरीब गरीब कह रहे हैं वो गरीब लोग हैं नहीं। उनके पास स्पिरिचुअल और इथिक्स और लाइफ रूल्स इतने स्ट्रांग है कि अगर उनको रात को खाना नहीं मिलता है तो कहते हैं कि पता नहीं मैंने आज किसी को कुछ किया होगा, पिछले जन्म में कुछ कर दिया होगा, आज मेरे को खाना नहीं मिला, और भगवान को प्रणाम करके सो जाते हैं, कहते हैं कल देख लेना मिल जाएगा। है कि ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनली उनके इथिक्स और उनके सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हैं उनके दिमाग में कि उनसे आप लड़ने जाए, वो कहेंगे मेरे को लड़ना ही नहीं है तुमसे, तो क्या लड़ेंगे आप। तो उसने कहा कि भाई इसको फिर करें कैसे। तो उसने कहा कि इनको करना ये होगा कि इनका जो पूरा का पूरा एजुकेशन है, ये मतलब हजारों साल का जो इनका एजुकेशन पैटर्न है, वो इतना स्ट्रांग है कि अगर वो बना रहा तो इनको आप कभी भी गुलाम नहीं बना सकते। आपको इनके एजुकेशन की पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा। तो ये साहब जो थे, इनका नाम था मैकॉले। तो इनको हिस्ट्री में लॉर्ड मैकॉले के नाम से जाना जाता है। पता नहीं लॉर्ड क्यों है, लेकिन है। तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि भारत की का एजुकेशन सिस्टम बदल देना होगा, और यहाँ के लोगों को पहले ये समझाना पड़ेगा कि जो अंग्रेज हैं वो आपसे बेहतर हैं।
और ये समझाने के बाद इनकी शिक्षा प्रणाली को बदल देना होगा और इनको क्लर्क बनाना होगा। मतलब उसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसको कहते हैं RRR थ्योरी। उसने कहा रीड राइट एंड अर्थमेटिक। आपको पढ़ना है, लिखना है और थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए, बस इससे ज्यादा इनको सीखने मत दो। और भारत में लोगों को एक बीमारी थी, वो अभी भी है बची हुई, थोड़ी सी कम, बहुत कम हो गई, थोड़ी लोगों में बची है। वो बीमारी थी सवाल पूछने की, और ये बीमारी यहाँ हजारों साल से थी। कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। आप कुछ भी कहते, एक घर के अंदर 10 लोग 10 तरीके से एक ही काम करते, कोई किसी से झगड़ा नहीं करता था कि तुम्हारा अपना तरीका मेरा अपना तरीका, कोई डिस्प्यूट नहीं था। वो इसलिए था कि हर आदमी साइंटिस्ट की तरह बिहेव करता था और वो सवाल पूछता था, मतलब दिमाग क्यूरियस था सवाल पूछने की। तो RRR सिस्टम कहता है कि सवाल पूछने मत दो, बस इंस्ट्रक्शन दो। तो क्लर्क जो काम करता है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन लेता है और काम करता है। वो आपसे कभी सवाल नहीं पूछता कि ये क्यों करना है। कह रहे ये वाला लेटर लिख के उनको भेज दो, वो ये नहीं पूछेगा कि क्यों भेजना है, क्या काम है, नहीं, उसको लेटर लिखना है, भेज देना है। तो ये सिस्टम अंग्रेजों ने भारत में इम्प्लीमेंट किया, और दुर्भाग्य ये है कि अभी अभी नया नया जो एजुकेशन सिस्टम अभी तुरंत आया है, इट्स समवेयर अ रे ऑफ होप, क्योंकि इसमें स्किलिंग की बात हो रही है, अलग अलग लेवल्स पे बात हो रही है। तो थोड़ा सा बदलाव मैं भी पर्सनली देख रहा हूँ, नहीं तो अभी तक हम मैकॉले के सिस्टम पे ही पढ़ाई कर रहे हैं। और इसीलिए हम जो ये जो प्रॉब्लम आती है ना कि हम ज्यादा सवाल नहीं पूछते, उसका प्रॉब्लम का रूट कॉज यही है कि पूरी की पूरी एजुकेशन की ट्रेनिंग ही ऐसी है जो आपको सवाल ही नहीं पूछने देती, बस आपको फीड करती है कि ये कर, ये पढ़ो, ये करके लाओ, ये करके लाओ। क्यों करना है, क्या करना है, आप ज्यादा सवाल पूछेंगे तो आपको डांट के बिठा देंगे। मेजोरिटी, कुछ टीचर्स हैं जो ऐसा नहीं करते, बट ज्यादातर यही करते हैं। तो ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ। नहीं, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक। तो ये एक मैं अपनी कहानी आपको सुना देता हूँ, जो मैंने स्कूल में किया था। उस वक्त मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था। तो मेरे को हमारे मैथ्स के टीचर थे, खिड़की के बाहर में, हमारे पहाड़ के ऊपर स्कूल था, तो खिड़की के बाहर कुछ चिड़िया उड़िया आती थी बहुत खूबसूरत। तो वो कोई चिड़िया थी, मैंने वैसी चिड़िया देखी नहीं थी, तो मैं देख रहा था। वो कुछ पढ़ा रहे थे, मेरा ध्यान ही नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि क्या देख रहे हो, मैंने कहा चिड़िया देख रहा हूँ। कह रहे तुम किताब में देखो। मैंने कहा कि नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बुक। तो मैं उनको देखता रहा। फिर वो कह रहे कि मेरे को क्या देख रहे हो, किताब को देखो। मैंने कहा कि मेरे को एक सवाल है। कि क्या सवाल है? मैंने कहा कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है? नहीं जानता हूँ। कि ये क्या बात है, सबको आता है कॉन्सेंट्रेट करना, ऐसे थोड़ा ही होता है। मैंने कहा मेरे को नहीं आता है, मैं किसी ने सिखाया नहीं। आप कह रहे हैं कि आप मेरे को एक नई चीज करने को कह रहे हैं जो मैंने कभी सुनी नहीं। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। तो उन्होंने मेरे को क्लास से निकाल दिया। निकाल दिया तो मैं बाहर चला गया। वहां अच्छा था, सामने लोग आ रहे थे, उनसे बातचीत करता रहा। तो अगले दिन क्या हुआ कि मैं जैसे ही वो आए, उन्होंने मेरे को देखा और फिर क्लास से निकाल दिया, तो उनको पता था मैं फिर पूछूंगा। तो निकाल दिया तो मैं सीधा प्रिंसिपल चैम्बर में चला गया। वहां जाके मैंने, उसने प्रिंसिपल ने कहा क्या बात है, मेरी हाइट भी उस वक्त बहुत छोटी होती थी। तो बोले क्या हो गया? मैंने कहा कि सर मेरा एक सवाल है, मैं अपने सर से पूछ रहा हूँ, वो बता नहीं रहे और क्लास से निकाल देते हैं। तो उन्होंने बुलाया उनको, उनको पूछा कि क्या सवाल है? मैं कहा ये सवाल है। उनको बुलाया, उनका कि साहब आप इनको बता क्यों नहीं देते? कह रहे ये बदमाशी करता है क्लास में, ये उल्टे सीधे सवाल पूछता है, कहता है कि कंसंट्रेट कैसे करें ये बताइए। प्रिंसिपल ने कहा कि सही तो पूछ रहा है, उसको नहीं मालूम है। और जब आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसका प्रोसेस भी बता दीजिए। तो उन्होंने तो कुछ बताया नहीं। तो हमारे प्रिंसिपल ने एक स्टाफ मीटिंग बुलाई, उसमें मैं भी था।
और उन्होंने कहा कि भाई इस बच्चे ने एक सवाल पूछ दिया है, अगर आप में से किसी को पता है तो बता दीजिए। तो किसी ने नहीं बताया, जबकि सारे टीचर्स, आप जितने भी लोग यहाँ सेशन में हैं, इन सबको किसी ना किसी ने ये कहा है ना कभी कि कंसंट्रेट करो। बहुत बार। जो भी मिला उसने कह दिया, बड़ा भाई हो, दोस्त हो, वो माँ बाप टीचर, सबने कह दिया, और हमने कभी पूछा भी नहीं, हमने उन्होंने बताया भी। तो वो मीटिंग में क्या हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको 15 दिन का टाइम देता हूँ, एक कमिटी बनाओ और इस पे एक डॉक्यूमेंट बनाओ पूरा, कंसंट्रेट करते कैसे हैं, इसका प्रोसेस बनाओ, इसका करिकुलम बनाओ। और मेरे सवाल ने उस स्कूल में एक नया क्लास शुरू करा दिया, हाउ टू कंसंट्रेट। तो थोड़ा बहुत उन्होंने सिखाया, उसका फायदा भी हुआ, क्योंकि देखिए कंसंट्रेट करना भी एक टेक्नोलॉजी है। अगर आपको आती है तो आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, नहीं तो वो एक्सीडेंटल है या इंटरेस्ट बेस्ड है, जिसमें मजा आएगा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लाइफ तो इंटरेस्ट बेस्ड है नहीं, उसमें तो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो इसलिए कई सारी चीजें होती हैं, इसलिए सवाल थोड़े कम आते हैं, कोई बात नहीं, बाद में भी सवाल आएंगे तो हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। I have a शुरू हुआ है question. तो Yes, बता दीजिए please. कि कंसंट्रेशन कैसे करना है। 2 questions came at a time, 1 question. हाँ, Okay, शुरू हुआ है तो यू टेल फर्स्ट। no, Samya, go ahead. मैंने बोला कि कंसंट्रेशन के बारे में शुरू हो जाए तो बोल दीजिए कैसे करना है कंसंट्रेशन। अच्छा, अभी बोल दूं क्या? हाँ, बोल दीजिए। एक और इसके ऊपर ना हम लोग एक दिन और डिटेल सेशन करेंगे, 5 मिनट में होगा नहीं। नहीं, आज आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटा भी ले सकते हैं आज। नहीं, वही दिक्कत हो गई ना, ये हमने प्लान नहीं किया था, इसलिए मेरे को कहीं जाना है, तो किसी दिन और हम किसी संडे को प्लान करके ना सिर्फ कंसंट्रेशन पे बात कर लेंगे। ओके, श्योर। थोड़ा लंबा है वो, इतना मुश्किल काम है, इतनी जल्दी कैसे होगा? ओके, श्योर श्योर, विल प्लान फॉर नेक्स्ट ठीक। सेशन। यस, सेकंड क्वेश्चन प्लीज। It was the same question. So, how could a 3-year-old a student of class third, learn to concentrate and keep that learning with him all throughout life, which is skill for life, I believe. Correct. So maybe you can plan some other session. Yeah, surely. I think if that there is is a the technique, yes, if you feel that there is a technique to it and there's a Yes, it science is. to it and it can be developed, so I think it's going to be really a brilliant tool for all the students and professionals and everyone alike. Correct. See, it's all. See, I'll tell you. Vivekananda said once that the success in your life lies in the degree of concentration that you have. So anyway, it is very important. Now, usme, see what it is. Basically, if I have to state it in one line, there are 2 things. One is concentration, one is distraction. या तो concentration है या distraction. तो अगर हम distraction छोड़ देंगे तो concentration आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, हमने मेजॉरिटी में, जो सबको नहीं कह रहा हूँ, बट मेजॉरिटी में होता ये है कि प्रैक्टिस करते हैं डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करते करते उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ मैं आपका चेहरा देख के 5 बातें सोच सकता हूँ अगर, तो आई हैव परफेक्टेड माय डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। मेरा फोकस ऐसा होना चाहिए कि मैं अगर देख रहा हूँ तो मतलब आर पार हो जाए। That is the type of practice it is. So I think that's a good thing that we have discussed. Maybe someday we'll plan it as a separate discussion and we'll go more in details, because it involves to think about your mind, your body, your thoughts, your energies. Multiple things has to be taken care. We'll try and do it one day.
Okay. One more thing. Where are you from? Are you from Nainital or somewhere? No, because I said my school had mountains. I think you're thinking about it. No, not because of that. Okay. If you might have. I was born in Bihar and I stayed there for quite a good time. Then I roamed around. Okay, okay. Yeah, so why I asked is that have you ever heard of a person called Nilesh Mishra? I have not heard about this. Okay, so you can check, and the way you talk and the way you look is exactly same as Nilesh Mishra. He's a Hindi storyteller, Okay. and he I'll has his find own out. channel. Yeah, yeah. I'll find out whom I look like. I should find out. Yes, I mean not exactly alike, but yes, a little bit similarity. Maybe I'll see. Okay, thank Good. you very much. Thank you. So Samrit will go ahead. Yeah, sure. Yeah. Okay. I think I talked a lot on. So here also, see, it's nothing that I'm here to share some big knowledge. कोई बड़ा ज्ञान देना है मेरे को, ऐसा नहीं. सक्सेस का क्या है, मैं अपनी बातें ही कर सकता हूँ जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो सारी चीजें हुई हैं. तो 3 चीजें तो मैंने श्योरली देखी हैं सक्सेस के बारे में. एक तो क्या है कि कंपटीशन जो होता है, जो हम स्कूल से कॉलेज से हर जगह से जो भी कंपटीशन देख रहे हैं या जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है वही मैकॉले के सिस्टम में, उसमें हम एक दूसरे से लड़ाई में लग जाते हैं. ये बड़ी बेसिक चीजें जो हम इग्नोर कर देते हैं. जैसे एक आदमी आया एक दिन मेरे पास, वो कह रहा कि तुमको पता है कौन सुखी है? मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं पता. इसका कोई नियम है? बोला हाँ, इसका नियम है ना, दुनिया में वही सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है. मैंने कहा ये अच्छा नियम बताया. तो ये तो मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि अगर कोई दुखी होगा तो हम सुखी होंगे, इस तरीके से. तो ये जो पूरा कंपटीशन का माहौल जो बना हुआ है, एक दूसरे से लड़ाई का, यहाँ जीत जाएंगे उसको आगे चले जाएंगे, ये कर देंगे, इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें सक्सेस हो या नहीं हो, डिरेलमेंट जरूर हो जाता है. तो मैंने पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया है या जो मैं अच्छा फील करता हूँ अपने बारे में, मैं उसी को सक्सेस मानता हूँ. तो होता ये है कि आपको अपना ही पोटेंशियल एसेस करके, अपनी ही क्षमताओं को समझ के, और उसका जो 100% एग्जीक्यूशन है, मेरा आज का जो भी पोटेंशियल है, मेरी आज जो भी मेरी क्षमता है, चाहे वो शरीर से हो, दिमाग से हो, ज्ञान से हो, जो कुछ भी है, उसको अगर मैं 100% यूज करता हूँ किसी काम को करने के लिए, तो मेरा सक्सेस 100% हो गया है. उसका रिजल्ट क्या आना है नहीं आना है, जो हमारे हाथ में नहीं है, वो कंसिडरेबल भी नहीं. पर अगर मैंने वो नहीं किया जो मैं कर, देखिए होता क्या है कि अगर मैं वो नहीं कर रहा जो मैं नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, पर अगर मैंने वो नहीं किया जो मैं कर सकता हूँ तो फिर मैं हूं ही क्यों. तो जो भी मैं कर सकता हूँ वो मेरे को करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, तो मेरा सक्सेस हो जाएगा. तो लोगों से जब मैं मेजोरिटी में ऐसे बातचीत में भी पूछता हूँ कि भाई आप सक्सेसफुल, कितने लोग सक्सेसफुल हैं, तो मुश्किल से 1 या 2 लोग हाथ उठाते हैं. तो बाकी के साथ क्या हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि ये हो जाएगा तो मेरा सक्सेस हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं. जब आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो दुनिया में लाखों लोग हैं जो वो सुबह नहीं उठते, वो सोए रह जाते, पर आप उठ जाते हैं, तो ये सक्सेस नहीं हुआ क्या? आप सड़क पे चल रहे हैं, आप किसी अमेरिकन को ले आइए इधर, एक बाइक दे दीजिए उड़ीसा में या कटक में, बाइक दे दीजिए या बैंगलोर में दे दीजिए, तो एक दिन में शायद वो ऊपर पहुंच जाएगा. उसको क्या है, रेड लाइट आएगी तो वो बाइक रोक देगा, वो उधर साइड वाला तो सोचेगा नहीं, होगा तब कोई तो रुकेगा नहीं, ठीक है, वो उसको मार के चला जाएगा. आप अगर बाइक चला रहे हैं इंडिया की सड़क पे और जिंदा घर पहुंचते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं. इस बात को समझना पड़ेगा. तो हम कैसे अपना सक्सेस समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम हमेशा पोस्टपोन करते हैं
तो वो एक एंडलेस प्रोसेस है, हम कभी भी वहां तक पहुंचेंगे नहीं। तो ये तो एक बेसिक फंडा है जिसमें कई जगह हम गलती करते हैं कि हम ये मानते ही नहीं कि हम सक्सेसफुल। और दूसरी गलती हम ये करते हैं कि कोई भी छोटी बड़ी कोई भी सक्सेस उसको सेलिब्रेट नहीं करते। ये सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोर्ड के एग्जाम्स दिए 10th के, ये सच्ची बात बता रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स में कभी पढ़ना ही नहीं चाहता था और मैं इंजीनियर बन गया। तो मैथ्स का पेपर था, तो मैंने क्या किया कि बाकी सब्जेक्ट्स तो मैं पढ़ता था, मैथ्स के पेपर में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 50 नंबर की तैयारी करूंगा और बहुत है, उससे ज्यादा नहीं, पास हो ही जाऊंगा। तो मैंने 50 नंबर की तैयारी की, एग्जाम भी दे दिया। तो मैथ में मेरे आए 46। तो बाकी लोग दुखी थे कि बेचारा, बाकी घर में बच्चों को आ गए 95, इसके आए 46। पर मैं अंदर अंदर जानता था कि मेरा परसेंटेज कितना है। आप जोड़ के देख लें, 100 नंबर की तैयारी होती तो कितने आते, 50 की तैयारी की थी तो 46 आए थे। तो लोग बाहर थोड़े दुखी थे पर मैं बहुत खुश था। मैंने कहा कि हो गया, सक्सेस हो गया, और क्या करना था। तो आप क्या कर रहे हैं ये बिल्कुल पर्सनल मैटर है। आपको ये आदत खुद में डालनी पड़ती है कि कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कितना करना है। जैसे साइंस में मेरे 98 थे और मैथ में 46। तो ये तो पर्सनल डिसीजंस होते हैं। तो 3 चीजें मैंने यहाँ पे लिस्ट की हैं स्लाइड के ऊपर, आप देखेंगे। एक है स्किल, एक है नॉलेज, एक है एटीट्यूड। ये तीनों की जरूरत पड़ती है किसी भी तरह के सक्सेस में, चाहे आप करियर में हो, लाइफ में हो, रिलेशन में हो, कुछ भी कर रहे हैं। सक्सेस का क्या है, तरह तरह की सक्सेस है। जैसे कि अगर हम फिजिकल सक्सेस की बात करें तो आपकी हेल्थ जो है वो फिजिकल सक्सेस है। अगर आप हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं, तो आप फिजिकली सक्सेसफुल हैं, ठीक है। आपके मन में सक्सेस होने लगे तो आपको हैप्पीनेस की अनुभूति होगी, आपको खुशी होने लगेगी मन में जब सक्सेस हो। कुछ और सक्सेस हो जाए एनर्जी में, लाइफ एनर्जीज में, और सक्सेसफुल होने लगे आप, तो आप थोड़े ब्लिसफुल या एक्सटेटिक हो जाते हैं, थोड़ा ऐसा बेहोशी जैसा रहता है हमेशा। तो तरह तरह के सक्सेस के लेवल्स होते हैं। तो अगर तो कैसे कहे, अगर आपका काम सक्सेसफुल होने लगे तो फिर वो करियर सक्सेस हो जाता है, बिजनेस सक्सेस हो जाता है। आसपास की चीजें सक्सेसफुल होने लगे तो रिलेशन सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसमें 3 पॉइंटर्स हैं, एक है व्हाट टू डू, एक है हाउ टू डू, और एक है व्हाई टू डू। तो व्हाई टू डू पे हमने पहले ही बात की कि किसी भी चीज का एक कारण होता है, वो कारण बनाने से उस काम को करने का एटीट्यूड सही हो जाता है। अगर एटीट्यूड सही नहीं है किसी काम को करने का तो वो बीच में आधा अधूरा रह जाता है। तो अगर आपके पास कारण है किसी काम को करने का तो आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली अलाइन होगा और आप उस काम को करेंगे एक सही भावना के साथ, एक सही एटीट्यूड के साथ। स्किल का मतलब, हम नॉलेज पहले उठाते हैं। नॉलेज का मतलब है कि व्हाट टू डू, ये समझना कि हम क्या करें। होता क्या है कि कई बार लोग आधी जिंदगी इस लड़ाई में निकाल देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। उनके पास पोटेंशियल होता है। जैसे एक पुरानी कहावत है कि अगर एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की उसकी क्षमता से आंका जाए तो वो जिंदगी भर मीडियोकर रह जाएगी या अनसक्सेसफुल और फेलियर रह जाएगी। मछली तो पेड़ पे चढ़ेगी नहीं। तो अगर कोई कह दे कि अरे तुम पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, वो सोच सोच के बीमार हो जाएगी। तो इस तरह से जो पूरा एक सिस्टम है, ये जान लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ और उसको आगे बढ़ाना। जैसे कि अगर किसी की इंग्लिश अगर कमजोर है और उसी आदमी को हम कह लें उनके मैथमेटिक्स जो है बहुत अच्छी, तो हम करते क्या है कि हम मैथमेटिक्स अच्छी है तो ठीक ही है, उसको छोड़ देते हैं और इंग्लिश के ऊपर बहुत मेहनत कर देते हैं ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए। तो हम एवरेज रह जाते हैं। अगर हमको ट्यूशन लेनी है और हमारा मैथ्स अच्छा है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैथमेटिक्स की ट्यूशन ले, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे मैथमेटिशियन बनने के रास्ते बढ़ जाए आगे। अंग्रेजी काम चलाओ, सीख ले, बस क्या है उसमें, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं।
तो हम अपनी एबिलिटीज को समझना भी एक काम है अर्ली स्टेज में। ये समझ लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ और कितना कर सकता हूँ, अभी इसको कैसे बढ़ा सकता हूँ, ये पूरा एनालिसिस अगर हम रखें अपने साथ, या किन चीजों के ऊपर काम करने से मैं, ऐसा नहीं है कि चीजें अनअचीवेबल होती, ऐसा नहीं है कि मैं अगर अंग्रेजी कमजोर है तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। फिर उसके तरीके होते हैं, उस पर डिसाइड करना, उसको समझ लेना, कहाँ जाना है, कितना जाना है। तो ये नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में, दुनिया कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। अभी जैसे हमने CSR पे इतनी बात की, तो ये आसपास हो रहा है आपके, तो ये अवेयरनेस, ये नॉलेज, ये बहुत जरूरी है। तभी आप इस पूरे सिस्टम में अपने आप को सही तरीके से फिट कर पाते हैं। क्योंकि हम दुनिया के लिए ही कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं दुनिया में रह के कर रहे हैं। हम पहाड़ पे तो जा नहीं अकेले रहने, तो जब हमको सिस्टम में रहना है तो सिस्टम के नियम कानून को समझ के और उसमें सबसे बेहतर तरीके से एग्जिस्ट करना होता है। उससे लड़ना नहीं होता है। कई लोग लड़ते भी हैं, वो लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके लिए करना चाह रहे हैं उनसे ही लड़के क्या फायदा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये नॉलेज जो है, ये अवेयरनेस जो है, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेज है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा, जब आपको ये नॉलेज होने लगती है कि क्या करना है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या पोटेंशियल है, कैसे कर सकते हैं, तो फिर जरूरत पड़ती है स्किल की। स्किल जो है वो आपकी एबिलिटी है किसी भी काम को एक बेहतर तरीके से कर जाने की। जैसे अभी के एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्किल पे काफी फोकस किया गया है कि अगर आप 12th पास होते होते आपके पास इतनी स्किल्स आ जाएंगी कि आप अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाओ। ये जर्मनी की एक टीम आई हुई थी, मैं उनसे मिलने गया था IIM कैलकाटा में। उनसे काफी देर मेरी डिस्कशन हुई थी। वो कह रहे थे कि हमने इंडियन सिस्टम्स को अडॉप्ट कर लिया, आपने क्यों छोड़ दिया। वो कह रहे थे कि हमारे स्कूल्स में तो हम बच्चों को शुरू से ही फाउंड्री, इलेक्ट्रिकल, ये सारे स्किल्स उनको सिखाते हैं और इससे उनकी जिंदगी सिक्योर हो जाती है। फिर अगर किसी को रिसर्च करना हो, किसी को कुछ करना हो, तो वो अपने हिसाब से चूज कर लेता है। लेकिन उसके लाइफ के सस्टेनेंस को पूरा करने के लिए ये बेसिक स्किल्स उनको बचपन से दे दी जाती है। तो स्किल जो है वो हमारे जितने पुराने स्क्रिप्चर्स हैं जो काफी प्रोफाउंड हैं, उनमें भी ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जो स्किल है, जो कौशल है, उसका लेना देना सिर्फ आपके जीवन यापन से, ओनली फॉर विथ योर सर्वाइवल ऑन द प्लेनेट। उसका आगे के ज्ञान से कोई मतलब नहीं। तो वो स्किल एक पर्टिकुलर स्किल है। जैसे पहले कोई कुम्हार होता था तो उसके बच्चे वो काम बचपन से सीख जाते थे, तो उनकी जिंदगी चलाने का तरीका तो उनको आता था। अब वो जो काम कर रहे थे उसके बाद वो और भी कुछ भी कर सकते थे, वो दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर भी हो सकते थे, बट दैट वाज देयर चॉइस। तो पहली चीज होती है नॉलेज। नॉलेज होने के बाद सर्टेन स्किल्स हैं जिनको करने से वो काम होता है, ऑन ग्राउंड वो काम एग्जीक्यूट होने लगता है। जैसे अभी आपने जो पेड़ लगाए, या वो एक स्किल है, पेड़ लगाना भी एक स्किल है। हर आदमी पेड़ नहीं लगा सकता, आप जाके किसी को बोल दीजिए, वो ऐसा लगाएगा वो 5 दिन में सूख जाएगा। आपने अगर पेड़ लगाया और वो पेड़ 4 साल से है, सो यू हैव अ स्किल टू प्लांट अ ट्री। तो आपने पहले समझा कि हमारे आसपास जो है इतने इतने ये डिप्रेशन हो रहा है, इतने पेड़ होने चाहिए, ये हुई अवेयरनेस और नॉलेज। फिर आपके पास एक स्किल है, या तो आपने कहीं से उसको अक्वायर किया है, कहीं से सीखा है, वो स्किल को आपने यूज करके उसको एग्जीक्यूट किया, और आपके पास कारण है और उसके कारण आपके पास एटीट्यूड है। तो इसलिए वो काम सक्सेस हो रहा है, और ये सक्सेस का अच्छा एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा हुआ तो सक्सेस हुआ। इससे हम ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर सक्सेस में कुछ बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, ये होता कैसे। बहुत डिटेल तो नहीं जा पाएंगे, पर बेसिक्स में समझ रहे हैं। ये 3 चीजें यहाँ पे हुई, और ये चौथी चीज जो यहाँ लिखी हुई है वो है हैबिट। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा गेम है ये इसके। जैसे एक कहानी पहले सुनते हैं, उसके बाद इस पे बात करेंगे। ये कहानी शायद आपने सुनी भी होगी, तो भी दोबारा सुन लीजिए। एक सर्कस में एक बच्चा जाता है
और वो देखता है कि एक बड़ा सा हाथी जो है एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। तो वो अपने फादर को दिखाता है और बहुत परेशान होता है कि ये इतना बड़ा हाथी है, इसको पतली सी रस्सी से बांधा हुआ है, बैठा हुआ है चुपचाप, हिल भी नहीं रहा है। तो उसके फादर जो है उसको लेके जाते हैं, वो हाथी का ट्रेनर वहां पे घूम रहा होता है, उसको पूछते हैं कि भाई इतना बड़ा हाथी है, इसको इतनी छोटी रस्सी से कैसे कंट्रोल करते हैं? वो कहता है कि ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये जब छोटा था, ये हाथी छोटा था पहले, तो इसके पैर में ये रस्सी बांधी, उस वक्त ये रस्सी इसके लिए बहुत मोटी और बड़ी थी। बोले उस वक्त इसने बहुत मेहनत की इसको तोड़ने के लिए, और उसके पास उतनी ताकत नहीं थी। बोले उसने महीनों मेहनत की, फिर वो थक गया। थक गया तो थक गया, उसने ये मान लिया कि ये रस्सी मेरे से नहीं टूटेगी। बोले उसके बाद से आज तक उसने कोशिश ही नहीं की। तो उसको आप धागे से भी बांध देंगे वो जाएगा नहीं, उसको पता है कि ये टूटेगा ही। वो हाथी चाहे तो पूरा सर्कस उखाड़ के फेंक दे, इतनी ताकत है उसको, पर वो एक रस्सी भी नहीं हिला रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसके दिमाग ने ये मान लिया है कि ये रस्सी मेरे से नहीं हिलेगी। तो दिमाग जो है आपका वो इतना, उसको कैसे कहूँ मैं, इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना ब्रिलियंट मशीनरी है उसके अंदर कि अगर उसको ठीक से हैंडल ना किया जाए तो वो आपको कहीं भी लेके जा सकता है। तो हैबिट के ऊपर मैं एक छोटी बात करना चाहता हूँ कि कैसे हम सक्सेस की हैबिट बनाते हैं, या गलती और सही क्या करते हैं। अभी एक जो बहुत छोटे तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर इसको प्रैक्टिस में ले आए तो बड़ा फायदा होता है, बहुत जल्दी होता है। जैसे कोई भी काम करने जाते हैं हम, अगर ये सवाल मन में आ रहा है कि ये नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, अगर डाउट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ फंडामेंटल गलती हो रही है। मतलब कोई काम होगा तभी तो सक्सेस तक पहुंचेंगे, और वहां जाने के पहले ही डाउट्स आने लगेंगे अगर। और ये सबके साथ आगे पीछे होता है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको कितना भी बड़ा कोई भी काम दे वो पहले बार में कह देंगे हाँ ठीक है, हो जाएगा, हाँ कर लेंगे। तो ये जो दो तरह के दिमाग हैं, इनका फर्क क्या है और ये हो क्या रहा है? तो असल में होता क्या है कि हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं। जैसे अगर मैंने ये कमिट कर दिया अपने आप को, किसी और को नहीं, कि कल सुबह से मैं 4 बजे सुबह उठूंगा, और मैंने किया क्या, मैं सोते सोते मैंने रात का 1 बजा दिया, और उसके बाद मैं उठा सुबह 8 बजे। पर मैंने शाम को खुद को कहा था कि मैं 4 बजे उठूंगा, मैं उठ रहा हूँ 8 बजे। 8 बजे उठने के बाद एक बार दिमाग में आता है कि अरे 4 बजे उठना था लेकिन 8 बज गए। फिर तुरंत मेरा दिमाग मेरे को सजेशन देता है कि नहीं नहीं, 8 इसलिए बजे हैं क्योंकि कल रात को तुम 1 बजे सोए थे, और 1 बजे इसलिए सोए थे क्योंकि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये जस्टिफाइड है, कोई बात नहीं। ये आपका जो कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड है, सबसे ऊपर जो, यहाँ तो है नहीं बट नोटिफिकेशन के लिए सबसे ऊपर जो लेवल है, वो ये सारे खेल खेलता है और आपको समझा देता है कि कोई बात नहीं। पर उसके पीछे एक और लेयर है, उसको कहते हैं सबकॉन्शियस। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो ये सब ट्रैप में फंसता नहीं है। वो आप खुद को समझाएं कुछ भी, आपने एक बार जो कमिटमेंट की है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर आपने उसको पूरा नहीं किया तो वो उसको एज अ फेलियर अपने अंदर रजिस्टर कर लेता है। जैसे आपने कहा मैं 4 बजे उठूंगा, अगर आप 5 बजे उठे तो आपका सबकॉन्शियस उसको फेलियर करके रजिस्टर कर लेता है अपने अंदर। इस तरह से आप सोच लें कि दिन में आप कितने कमिटमेंट्स करते हैं और कितने पे पूरे उतरते हैं। मतलब आप एक्चुअली कितने डिसिप्लिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इनिशियल स्टेजेस में, जब तक हमारे दिमाग को इसकी आदत ना हो जाए। क्योंकि हमने कुछ भी कह दिया किसी को, मैं आज राइस नहीं खाऊंगा, और खाने बैठा किसी को देख कर तो मेरा भी मन कर रहा है खाने, तो खा लिया। क्या कोई बात नहीं, मन कर रहा था खा लिया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। पर आपके सबकॉन्शियस ने उसको एज अ फेलियर रजिस्टर कर लिया कि इसने बोला था नहीं खाएगा पर खा लिया। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर होता क्या है कि अगर एक दिन में आपने ऐसे 20 काम किए, और अगर आपकी उम्र आज 30 साल है,
तो आप जोड़ लें कि आपने कितना सारा फेलियर अपने सबकॉन्शियस को रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है। तो होता क्या है कि जब इस तरीके से रजिस्ट्रेशंस होते हैं, तो जब भी आप इससे थोड़ा बड़ा काम करना चाहेंगे, जैसे आप बोलेंगे कि मैं एक कंपनी शुरू करता हूँ, जैसे ही बोलेंगे आपका सबकॉन्शियस गुस्से से बाहर आएगा, बोलेगा कि सुबह 5 बजे तुमसे उठा नहीं जाता, तुम कंपनी चलाओगे। और ये आपको समझ नहीं आएगा कि वो क्यों आपका विरोध कर रहा है, लेकिन वो तंग आ गया है आपके फेलियर्स के रजिस्ट्रेशन से। वो कह रहा है कि छोटे छोटे काम तो तुमसे हो नहीं रहे भाई, तुम ये बड़ा काम कैसे करोगे। तो वो डाउट पैदा करता है, और ये डाउट आपका कॉन्फिडेंस डाउन करता है। जब कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो एटीट्यूड हिल जाता है, उसके बाद कारण हिल जाता है, सब कुछ हिल जाता है, आदमी चला जाता है अनसक्सेसफुल स्टेट। तो इसको ठीक करने के लिए, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कभी भी, इसको ठीक करने के लिए या इसको एक आदत बनाने के लिए, सक्सेस को एक आदत बनाने के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके लिए छोटा तरीका जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाया था वो यही था कि मैं छोटे छोटे कमिटमेंट्स करता था खुद को, और उनको पूरा कर देता था, बेकार के कमिटमेंट्स। जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ और मैंने घड़ी देख ली और मैंने बोला कि 10 मिनट के बाद मैं इस कुर्सी से उठ जाऊंगा। घड़ी देखते देखते उठ गया, जैसे ही 10 मिनट हुए उठ गया, तो उठते ही मेरे सबकॉन्शियस ने एक सक्सेस रजिस्टर किया। ऐसा मैंने अगर दिन में 50 सक्सेस रजिस्टर कर लिए बेकार की चीजों, तो धीरे धीरे मेरा पूरा, आपको समझ नहीं आएगा, 1 महीने के अंदर आपके माइंड का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। कोई भी चीज जो है, जो आपको मुश्किल लग रही थी, वो आसान हो जाएगी। उससे आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा, चीजों को समझने का तरीका बदल जाएगा, लोगों को देखने का तरीका बदल जाएगा। ये बहुत ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ। अगर ये छोटी सी प्रैक्टिस भी कर लें, उसको ही आदत बना लें कि हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर लेंगे, कोई ऐसा कमिटमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे जिसमें ज्यादा डाउट आता हो शुरू के स्टेज में, तो सक्सेस जो है वो एक हैबिट की तरह फॉर्म कर सकती है, और ये एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डाल सकती है। अभी मैं सोचता हूँ कि काफी टाइम ले लिया है मैंने, और यहीं पे ठीक इसको है, आई थिंक रोकते इट वाज हैं। अ गुड सेशन। यस। एक बार थोड़ा बहुत आर्टिकल राइटिंग करता हूँ। अच्छा। तो एक हैबिट के ऊपर एक लिखा था कि we are slaves of our habits, यस। so better we choose our master carefully. या दैट्स ट्रू। जो भी हमारा हैबिट्स होता है हम उसी टाइप से ही बन जाते हैं फिर। करेक्ट। सो कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ, एक क्वेश्चन है। नहीं समझे। हेलो। यस। हेलो। I think some sound disturbances है। बाबू तो कथा सुना जाओ नहीं। हेलो। हाँ हाँ, अभी आ रही। हेलो, सुना गया? हाँ सुनाओ You जी। can post your question in chat. ये सर के बारे में क्वेश्चन है। एक्चुअली आपने बोला कि सुनाई नहीं दे, मैं उसको फोन करके पूछ लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, या टाइप कर दे भी, अगर टाइप भी कर दे तो।
तो उसका क्वेश्चन ये था यस कि जो हमारे उड़ीसा में जो एनजीओस हैं या जो कॉर्पोरेट सीएसआर में काम करते हैं, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट? दैट विल फाइंड आउट, आई थिंक वी डिस्कस। वो कैसे ढूंढना है, मतलब इंटरनेट पे ढूंढना पड़ेगा, और या मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ, उनसे कनेक्ट करके मैं पता करता हूँ। Sure, that would be great. So I think that will work on. We'll find out what type of NGOs and in what sections they are working in Cuttack and nearby areas. We'll try and find out. Sure. Okay, fine. और किसी का कुछ क्वेश्चन है? एंड कर सकते हैं। आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है। जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन था इनिशियली वो मैंने ही पूछ लिया था सीएसआर के ऊपर। एक्चुअली कुछ लोग भी चले गए इसलिए कि जो काल जो प्रोग्राम है हमारा जो ग्रुप प्रोग्राम तो अवार्ड सेरेमनी टुवर्ड्स द टीचर्स, इसके लिए कुछ काम के लिए चले गए कुछ लोग। अच्छा नहीं ठीक है। और एक इनिशिएटिव इन लोग कर रहे हैं अभी कि अभी तो हमारा जो काम था हमारे गांव के में रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब उसके अंदर ही कर रहे थे, बट अभी और कुछ लोग जुड़ गए हैं आसपास के गांव से। तो ब्लॉक लेवल पे हमारे जो स्टूडेंट्स अभी कुछ लोग थे यहाँ पे, सो दे आर ऑर्गेनाइजिंग वन इवेंट ऑन बिहाफ ऑफ टीचर्स डे। टीचर्स डे कल था बट वो इवेंट हो नहीं पाया था क्योंकि लॉकडाउन होता है, वीकेंड्स में उड़ीसा में लॉकडाउन होता है। तो कल ये वो इवेंट है, तो कुछ लोग इसीलिए चले गए कि कल इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, सो दे जस्ट लेफ्ट अर्ली। आई थिंक दैट्स सो आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग और कोई क्वेश्चन आता है तो आई विल बी इन टच। yes sure। So on behalf of all the students, so thank you so much. Thank you, it for was spending time with us. It was a great opportunity for me to do it. जरूर एक बार आइएगा और कंसंट्रेशन की क्लास बताइएगा। नहीं, ये हम लोग करेंगे, कंसंट्रेशन वाला करेंगे, मजेदार। उस दिन थोड़ा सब लोग एक साथ टाइम लेके आएंगे, we'll do it. स्पेशली वो जो आपका जो स्कूल में जो क्लास शुरू होता है उस क्लास के बारे में जरूर बताइएगा। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। मेरा भी यही कहना था, ये स्कूल वाला है ना, वही सुनना था। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग प्लान करके एक दिन डिटेल में कंसंट्रेशन पे सेशन। ठीक, बहुत ही अच्छा लगा, it was great. For me also, see, there are places when you feel connected, so you can open up instantly, और वो भी वर्चुअल मीडिया के ऊपर। सामने सामने बात अलग होती है, सामने सामने कनेक्टिंग इज क्वाइट इजी। yes. तो वर्चुअली मैं करता रहता हूँ, बट there are only few places where we feel connected, so this was one of the place for me where I am not holding on to it. It is okay to let it flow. एक चीज था, और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे कंसंट्रेशन को करेंगे और नेगेटिविटी को कैसे दूर करेंगे उसके ऊपर भी थोड़ा कवर करेंगे तो देन अच्छा होगा। मैं सुन नहीं पाया, एक बार और बोलिए। जैसे माइंड में नेगेटिव थॉट्स बहुत आता है ना, डिस्ट्रैक्शन जैसा आता है, आप बता रहे थे। हाँ तो उसको कैसे दूर करना है? हाँ, वो कंसंट्रेशन में ही आ जाएगा। ओके, जैसे कि बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं तो नेगेटिविटी अपने आप आ जाता है। बहुत सारे लोग के बीच में रहते हैं तो नेगेटिविटी आता नहीं है। जैसे आदमी सिंगल रहता है तो अपने आप फ्रस्ट्रेशन या समथिंग आ ही जाता है। हाउ टू इरेडिकेट दैट वन, तो वो कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा एकदम नेगेटिविटी भगा देंगे हम लोग। यस। सवाल उसका इसलिए था क्योंकि वो अभी अकेला रह रहा है नागपुर में, और उसके अभी बेटा हुआ है, उसको मिला नहीं है, वो इसलिए थोड़ा परेशान है। कोई बात नहीं। एवरीथिंग, एक अकबर बीरबल मालूम है ना? हाँ मालूम। एक बार वो दोनों गए थे जंगल में शिकार करने, तो बीरबल कुछ तलवार निकाला, अकबर की एक उंगली कट गई।
बहुत नाराज हो गया। वो बोला कि मैं उंगली काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इसको ले जाओ, इसको फांसी पे चढ़ा दो। तो बीरबल को लेके सब चले गए और अकबर चला गया शिकार करने जंगल में। वहां गया तो कुछ आदिवासी लोग उसको पकड़ लिया, अकेला था। अकबर क्या करता, तो बोला, आदिवासी लोग बोले इसकी बलि दे दो। तो बलि देने जब जा रहे थे ना, तो देखा कि इसकी एक उंगली कटी हुई है। तो उनके यहाँ नियम था कि अगर शरीर में कुछ कटा है तो उसकी बलि नहीं दे सकते। तो अकबर बच गया तो बाहर निकला तो बोला कि बीरबल को बचाओ पहले, इसकी वजह से मैं बच गया। वहां दौड़ के गया, वहां पहुंचा, तब तक इसको फांसी हो रही थी, किसी तरह रोका तो बीरबल ने बाहर आके बोला कि देखिए महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर ने कहा कि इसमें क्या अच्छा होता है, मैं 5 मिनट और नहीं आता तो तुमको फांसी दे के मार देते। बोले आपको समझ में नहीं आई बात, अगर मैं आपके साथ जंगल में रहता तो शिकार करने तो जरूर जाता। तो उंगली तो आपकी कटी हुई थी, मेरी तो कटी नहीं थी, तो आपको नहीं, मेरे को तो मार ही देते। तो जो होता है वो अच्छा ही होता है। ठीक है। Okay. Okay. Thank you. Cool then. I think. Thank you. We'll be in touch. Thank you. Yes. Okay. Thank you. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you very much. Thank you. Take care. Bye bye. Thank you.